Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm a computer teacher. Now we will start lesson number 4, more about tux painting. So now all of you look at in your textbook. We will start chapter number 5, more about tux painting. So in the tux painting is the painting. So now look at here. I can draw lines and shapes in the tux painting, but I am not good at the drawing figures. What he say? I am draw shapes and lines, but I do not draw the any figure. Do not worry, Google. Tux painting has a stamp of the fruits, vehicles, animal, etc. that you can use. In the tux painting, there are lots of stamp. For example, vehicle, fruit stamp, animal stamps, and etc. Okay, that is cool, Toggle. What is it? Yes, that is the cool. Now all of you look at here. You learn to draw and color in the tux painting in the class 3. In the class 3 you had done how to draw and color in the tux painting. Do you remember what is the main screen look like? Let us review it. So this is the main screen of the tux painting. So in the tux painting which is the main parts are here. So first look at here toolbars. So that all is known as the toolbars. Contain the drawing and the editing tools. Contain the drawings and the editing tools. Then next is here downside this blank side available. This is the help area provide the tips and information about the selected tools. तो यहाँ पे हमने जो भी सिलेक्ट किया हुआ क्या है इंफॉर्मेशन है हमने टूल्स जो सिलेक्ट किया तो यहाँ पे लिख के आता है. Then next the selector shows different size type and selected tools. तो यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया है इसके डिफरेंट टूल्स हमें यहाँ पे दिखेंगे, साइज दिख लेंगे. द ड्राइंग कैनवास इज यूज टू ड्रॉ. और ये जो वाइट कलर का एरिया दिखेगा ये क्या है? ड्राइंग एरिया. यहाँ पे हम क्या करेंगे? ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे. So now let's all of you look at here. In the next page number 41 is the stamp tools. But first I will show you a screen of the program of the tux paintings in there. So now look at here. This is the tux painting. Sorry, this one is the tux program. So first this one is the tools. So here all the tools. ये क्या है? Tools है. यहाँ पे सारे tools है. देन दिस इज़ द हेल्प एरिया. यहाँ पे क्या है? हेल्प एरिया है. तो यहाँ पे देखो द एक प्लांट विद द फ्रूट ये सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिख के आ गया है एक प्लांट विद सिलेक्टेड फ्रूट. अगर हम इसको देखो यहाँ पे रेड एंड वाइट एंड वन फ्लावर्स यहाँ पे लिख के आ गया. तो जो हम सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे लिख के आ जाएगा. देन यहाँ पे स्टैम्प से यहाँ पे स्टैम्प जो सिलेक्ट किया है उसके अंदर क्या क्या है वो दिखा रहा है. एंड दिस वाइट एरिया दिस इज़ द ड्राइंग एरिया. दिस इज़ द ड्राइंग एरिया जहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारी ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग द टूल्स. नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन द टेक्स्ट बुक. फर्स्ट वी विल सी इन द टेक्स्ट बुक, देन वी विल ड्रॉ पिक्चर्स. So first is the stamp tools. The tools is like a rubber stamp or a sticker. It lets you paste image for example of a car and aeroplanes, the earth and engine etc. on your drawing canvas. तो हम स्टैम्प टूल से स्टैम्प सिलेक्ट करके फिर वहाँ से हम कोई भी स्टैम्प को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कार दिया है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, इंजन है, तो यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. स्टैम्प टूल्स एंड द स्टैम्प मेनू. स्टैम्प टूल एंड द स्टैम्प मेनू. तो उसके लिए स्टेप क्या है? नाउ लुक एट हियर. टू यूज़ द स्टैम्प टूल एंड फॉलोइंग द स्टेप. तो यहाँ पे स्टैम्प दिए है कौन से हम स्टैम्प को सिलेक्ट कर सकते. तो सबसे पहले अप एरो मूव द अप इमेज लिस्ट.
तो ये अप वाला एरो है, तो इससे हम ऊपर वाले इमेज ले सकते हैं। एंड दिस वन इज द डाउन एरो, मूव द डाउन इमेज लिस्ट। तो यहाँ पे नीचे वाली लिस्ट आएंगी जो स्टैम्प की होती है वो। टू यूज़ द स्टैम्प टूल फॉलोइंग दिस स्टेप आर, सो स्टेप नंबर 1, click the stamp tools. So first we will click on the dash stamp tools in the tools bar. जो tools bar में stamp वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके हमें क्लिक करना पड़ेगा। और list stamps appear in selected and the right side. जैसे हम स्टैम्प पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे लिस्ट आ जाएंगी स्टैम्प की। List the stamp appear, select and the right side. Then use a right and left arrow. यहाँ पे देखो नीचे राइट एंड लेफ्ट वाला एरो दिखेगा। टू मूव थ्रू द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द स्टैम्प्स। तो वे अलग अलग टाइप के कैटेगरीज के हमें स्टैम्प दिखेंगे। एनिमल्स, प्लांट, आउट स्पेस, व्हीकल एंड पीपल। हमें फॉर एग्जांपल एनिमल्स के स्टैम्प दिखेंगे, देन प्लांट के, आउट स्पेस के, व्हीकल के, अलग अलग हमें यहाँ पे स्टैम्प दिख जाएंगे। देन क्लिक द स्टैम्प, फॉर एग्जांपल दैट इज बटरफ्लाई स्टैम्प। तो यहाँ पे बटरफ्लाई का स्टैम्प सिलेक्ट किया है। एंड मूव द माउस अराउंड द कैनवास। और फिर हम माउस यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम उसको मूव करेंगे। द आउटलाइन फॉलोइंग द मूवमेंट्स ऑफ द माउस शो देयर स्टैम्प विल बी प्लेस, हाउ बिग इट विल बी बिग। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारी जो हमारी स्टैम्प है उसका साइज भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लिक द कंट्रोल टूल्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टैम्प, फ्लिप एट द वर्टिकली एंड डिस्प्ले द मिरर इमेज। देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये इसके यूज़ करके हम जो स्टैम्प है उसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो आपको टूल्स दिख रहा है उसका यूज़ करके हमारे स्टैम्प की साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लिक द कैनवास टू प्लेस द इमेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टैम्प इन यूर पिक्चर। डिफरेंट स्टैम्प कैन बी डिफरेंट साउंड इफेक्ट और अ डिस्क्रिप्शन स्पोकन साउंड। वहाँ पे अलग अलग साउंड के लिए अलग अलग स्टैम्प के लिए अलग अलग क्या आता है, साउंड आता है। सो नाउ लुक एट हियर, ये जो साइन दिख रहा है ये मिरर इमेज के लिए, ठीक है। फ्लिप द इमेज इज वर्टिकल, और ये साइज मतलब क्या है, हम वर्टिकल कर सकते हैं हमारी इमेज को। देन स्मॉलेस्ट इमेज, यहाँ से हमारी इमेज को हम स्मॉल कर सकते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट होता है। क्लिक द साउंड इफेक्ट, अगर हमें साउंड इफेक्ट देना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। क्लिक द स्पोकन वर्ड, अगर हमें कुछ वर्ड स्पोकन करना है तो यहाँ पे बोल सकते हैं। Now top tips. Tux Painting allowed you to place multiplies image of the same stamp in your picture. To stop, you should click some other stamps or tools. तो हम एक ही हमारे जो थीम है उसमें हम अलग अलग टाइप्स के क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के हम पिक्चर्स को ले सकते हैं और उसको अलग अलग इफेक्ट भी दे सकते हैं। बॉटम एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर अलाउड यू रीप्ले साउंड इफेक्ट एंड अ डिस्क्रिप्शन साउंड। तो यहाँ पे नीचे हमें साउंड दिया रहता है, कौन सा साउंड होता है, इफेक्ट एंड अ डिस्क्रिप्शन साउंड। इफेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन साउंड यहाँ पे दिया होता है। देखो यहाँ पे क्लिक द इफेक्ट साउंड, ये कौन सा साउंड आएगा यहाँ से, इफेक्ट साउंड, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिव साउंड। प्रेस द अल्टर प्लस एस विल बी डिसेबल साउंड इफेक्ट। अल्टर प्लस एस को दबाएंगे तो वो साउंड क्या हो जाएगा, डिसेबल साउंड इफेक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द साउंड म्यूटिंग। अगर हमें साउंड को म्यूट करना है, अगर हमारे साउंड को म्यूट करना है तो अल्टर प्लस एस की बटन दबाएंगे तो हमारा साउंड क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। दे कैन बी इनेबल बाय प्रेसिंग द अल्टर प्लस एस अगेन। अगर हमें साउंड स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें फिर से अल्टर प्लस एस को दबाएंगे तो हमारा साउंड फिर से शुरू हो जाएगा। सम स्टैम्प कैन बी कलर इफ द कलर पैलेट्स
appear below the canvas. When you select the stamp, you can click the described color to change the color of the stamp before the placing in the picture. तो अगर हमें किसी पिक्चर्स का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे पुट करने के पहले हमें यहाँ से कलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले यहाँ से हमें कलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। So this is the stamp tool. So now we will see here how to create by using the stamp tools our paint. So now all of you look at here. ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अभी स्टैम्प को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम टूल्स में जाएंगे। टूल्स में ये जो स्टैम्प वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो मैंने साउंड कम करके रखा है। ठीक है, अभी जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो, पहले हम डाउन साइड वाले एरो को देखेंगे। यहाँ पे जो डाउन वाला एरो है, यहाँ से हम यहाँ पे कौन से टूल्स है तो वो देखेंगे। देखो, और जैसे मैंने टूल पे क्लिक किया है तो देखो साउंड भी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट टूल्स भी दिए हुए हैं, डिफरेंट टूल्स भी दिए। अगर ऊपर जाना है तो ये वाला बटन दबाएंगे हम, अगर नीचे आना है तो इससे हम नीचे आ सकते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के टूल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे साउंड को ऑन किया है। अभी हमारे लेसन में दिया है कि Alt+S दबाएंगे तो साउंड ऑफ हो जाएगा। देखो Alt+S दबाया तो यहाँ पे लिख के आ गया है साउंड म्यूटेड। तो हमारा अभी साउंड क्या हो गया है, म्यूट हो गया है। तो अभी साउंड सुनाई नहीं देगा। नाउ लुक एट हियर, मैं क्लिक कर रही हूँ तो आपको साउंड भी नहीं सुनाई दे रहा है। तो ये और नीचे कौन से है हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के टूल्स है। तो यहाँ से हम वन टूल्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम फ्लावर का टूल्स सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये रेड कलर का फ्लावर है, उसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो, अभी साइज़ देखो, इसकी बड़ी साइज़ है। ठीक है, तो ये बड़ा साइज़ का हो गया। ठीक है, अभी हमें वो छोटे साइज़ का चाहिए तो हम क्या करेंगे, वो सिलेक्ट करके हुआ है। अभी हम दूसरा फ्लावर मैंने ये वाला फ्लावर सिलेक्ट किया है। अभी ये जो नीचे दिख रहा है, यहाँ से हम साइज़ को कम कर सकते। देखो मैं यहाँ से साइज़, तो यहाँ पे अभी जैसे पुट करूँगी तो ये देखो स्मॉल छोटे छोटे हो गए। बड़ा करूँगी तो बड़ा दिखेंगे, और बड़ा करूँगी तो बड़ा दिखेंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ से हम साइज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इसकी देखो, तो इसको हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम इसका फिर से साइज़ बढ़ा देंगे हम। तो यहाँ पे अलग अलग स्टैम्प होते हैं, उसका यूज़ हम कर सकते हैं। देखो डिफरेंट टूल से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले स्टैम्प पे जाना पड़ेगा। स्टैम्प पे जाने के बाद यहाँ पे अलग अलग टूल्स दिखेंगे, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें कोई कलर सिलेक्ट करना है तो। देखो यहाँ पे हमने ये बलून है, बलून का कलर चेंज कर सकते हैं। देखो ग्रीन है, रेड कर दिया, फिर हम पर्पल करेंगे। तो अलग अलग हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं। सो ये क्या है, टूल्स है। ठीक है, तो टूल्स के लिए सिलेक्ट करने के लिए हम कहाँ पे गए, सबसे पहले टूल्स पे गए। टूल्स पे जाके क्लिक किया है। देन राइट साइड पे हमने जैसे टूल्स पे क्लिक किया तो वहाँ पे अलग अलग टूल्स आ गए हैं। फिर उसके बाद हमें जो टूल्स चाहिए वो टूल्स सिलेक्ट किया है। देन नीचे साइज़ वाली बटन होती है, वहाँ से साइज़ हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। So now all of you look at here.
तो इस तरह हम स्टैम्प को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड. अ स्टोरी बोर्ड इज द सीरीज ऑफ द पिक्चर दैट यू टेल अ स्टोरी. लेट us create a storyboard for a table. The lion and the rabbit consisting of the 7 pictures. To create the first picture, follow these steps. तो हमें यहाँ पे लायन एंड रैबिट की स्टोरी बनानी है. तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक द न्यू टूल्स. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू टूल्स को क्लिक करना पड़ेगा. देन उसके बाद अ लिस्ट ऑफ द बैकग्राउंड विद द डिफरेंट कलर अपीयर्स. तो फिर जब न्यू टूल्स पे क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट के वहाँ पे बैकग्राउंड आ जाएंगे. सिलेक्ट द ब्लू बैकग्राउंड एंड क्लिक द ओपन. फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड आएगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे. तो हम एक एक स्टेप से यहाँ पे करके देखेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे. ठीक है, तो न्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन पे जाना पड़ेगा. ठीक है, देन ओपन पे गए तो यहाँ पे देखो क्या हो गया है, यहाँ पे ओपन हो गया है. यहाँ पे देखो अभी न्यू वाला ऑप्शन है. न्यू पे क्लिक करेंगे. न्यू पे यहाँ पे एक NUW न्यू करके ऑप्शन आ गया है. न्यू पे हमने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ब्लू कलर का थीम सिलेक्ट करने के लिए. तो अभी हम क्या करेंगे, ब्लू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन क्लिक करेंगे. तो ये देखो हमारा जो वहाँ पे बैकग्राउंड क्या हो गया है, ब्लू कलर का आ गया. हमने सबसे पहले क्या किया है, न्यू टूल्स पे क्लिक किया. यहाँ पे NEW न्यू करके ऑप्शन था, उसको हमने सिलेक्ट किया है. सबसे पहले हमने तो जो पहली हमने पिक्चर बनाई थी उसको पहले हमें सेव करना पड़ा, क्योंकि सेव करने के बाद ही न्यू ओपन होगा. तो हमने उसको सेव किया. फिर उसके बाद NEW न्यू ऑप्शन पे सिलेक्ट किया है. न्यू पे जाके वहाँ पे हमें अलग अलग कलर्स दिख रहे थे, उसमें से हमने ये ब्लू कलर का सिलेक्ट कर दिया. नाउ हम टेक्स्ट बुक से 1 बाय 1 स्टेप से फॉलो करेंगे. तो हमने सबसे पहले क्या किया है, न्यू टूल्स पे क्लिक करके हमने न्यू बैकग्राउंड लिया है. न्यू में हमने कौन से कलर का सिलेक्ट किया है, ब्लू कलर का सिलेक्ट कर दिया है. क्लिक द टेक्स्ट टूल. उसके बाद टेक्स्ट टूल पे हम क्लिक करेंगे. देन नेक्स्ट टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने पर चूज द वाइट इन द कलर choose the white in the color palette and select the text style from the option given on the right. फिर हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. फिर उसके बाद वाइट कलर का पैलेट सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से टेक्स्ट स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन गिवन इन द राइट, एंड टाइप द टेक्स्ट. और फिर उसके बाद हम वहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे. क्लिक द अप एंड डाउन एरो, सिलेक्ट द इंक्रीज एंड डिक्रीज द सिलेक्ट टेक्स्ट साइज. फिर वहाँ से हम टेक्स्ट का भी साइज़ क्या कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, टेक्स्ट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा. टेक्स्ट ऑप्शन पे जाके वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और कौन से कलर का पैलेट सिलेक्ट करना है, वाइट कलर का. और वहाँ पे हम लिखेंगे द लायन एंड द रैबिट. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए हैं. अभी यहाँ पे देखो टेक्स्ट करके ऑप्शन है, तो टेक्स्ट पे जाके मैं क्लिक करूँगी. तो जैसे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के फॉन्ट आ गए हैं. यहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉन्ट आ गए. तो इससे हम कोई भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे देखो कलर भी आ गए. तो यहाँ से हम वाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, कौन सा कलर सिलेक्ट करना है, वाइट कलर. और यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट भी है, तो हम कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे मैं अभी सेकंड वाला फॉन्ट को सिलेक्ट कर रही. देन लेबल, तो अभी जहाँ पे लिखना है हम वहाँ पे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ. तो इसका साइज़ भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं. इसका साइज़ भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं. तो ये मैंने सिलेक्ट किया है और अभी इसका साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे. यहाँ से देखो, यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है, यहाँ से बड़ा होगा, यहाँ से कम होगा. अगर हमें बड़े साइज़ में लिखना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. देखो यहाँ पे अलग अलग टूल्स आ गए.
तो यहाँ से हम साइज सिलेक्ट कर रहे हो। सो नाउ लुक एट हियर, ये जो आपको एरो दिख रही है इससे हम टेक्स्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये वाला साइज सिलेक्ट करके रखा है। हम यहाँ पे लिखेंगे द यहाँ पे मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है इसलिए इसका वैसे आ रहा है द। उसके बाद लिखेंगे लायन, LION लायन, एंड द RABBIT रैबिट। तो हमने कैसे सिलेक्ट किया है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऑप्शन से टेक्स्ट सिलेक्ट किया है। देन उस यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद इसका साइज़ भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसके थ्रू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अभी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और वहाँ पे हमने क्या लिखता है, द लायन एंड द रैबिट। सो देन नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर इन द टेक्स्ट बुक। Choose the white in the color palette and select the text style from the option given on the right. Type the text, click the up and down arrow and select the increase and decrease the size. हमने क्या किया था, जो नीचे अप एंड डाउन वाला एरो दिया था उससे हम साइज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन नाउ क्लिक द स्टैम्प टूल। सो उसके बाद अभी हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक द स्टैम्प टूल। प्लेस द इमेज ऑफ द लायन एंड द रैबिट इन द पिक्चर। तो हम क्या करेंगे, रैबिट और लायन की पिक्चर्स को हम क्या करेंगे वहाँ पे रखेंगे। देन क्लिक द सेव टूल और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव टूल्स पे क्लिक करेंगे। तो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर, यहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्टैम्प टूल्स पे जाके हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लायन का पिक्चर लेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे लायन का पिक्चर है, उस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे द लायन करके आ गया। तो यहाँ से हम लायन को सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ पे हम देखो साइज़ सिलेक्ट करके हम ये बड़ा हो जाएगा। तो हम थोड़ा छोटा साइज़ लेंगे तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो लायन आ गया। अभी हमें रैबिट लेना है तो हम रैबिट का स्टैम्प देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम रैबिट का स्टैम्प देखेंगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग एनिमल के स्टैम्प दिए हैं। तो यहाँ से हम रैबिट का जो स्टैम्प है वहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे फिर हम रैबिट का भी स्टैम्प यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ वी विल सिलेक्ट रैबिट फ्रॉम दिस स्टैम्प, ठीक है। रैबिट हमने सिलेक्ट किया। रैबिट का देखो फेस इस तरह दिख रहा है, हमें रैबिट का फेस इस तरह लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मिरर इमेज लेंगे और यहाँ पे रैबिट का हम फेस चेंज कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे रैबिट आ गया। तो लायन एंड रैबिट हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो हमने क्या किया था, पहले स्टैम्प टूल पे गए, स्टैम्प वाले टूल से हमने पहले क्या सिलेक्ट किया, लायन सिलेक्ट किया। देन उसके बाद रैबिट को हमने सिलेक्ट किया है। देन नाउ लुक एट हियर, टू क्रिएट अ सेकंड पिक्चर डू द फॉलोइंग। तो ये फर्स्ट वाला पिक्चर हो गया, उसको हमें पहले सेव करना पड़ेगा। तो सेव के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे SAVE सेव करके ऑप्शन है, वहाँ पे जाके हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो ये जो हमारी इमेज है वो क्या हो गए, सेव हो गए, ठीक है। देन सेव के बाद हम न्यू पे जाएंगे तो न्यू आ जाएगा। देन क्लिक द न्यू टूल्स। कहाँ पे क्लिक करेंगे, हम न्यू वाले टूल्स पे क्लिक करेंगे, NEW न्यू पे हम क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट द राइट ग्रीन बैकग्राउंड ऑन द क्लिक द ओपन, क्लिक द स्टैम्प टूल्स। फिर हम क्या कौन सा बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। यहाँ पे अभी ये ग्रीन कलर का सिलेक्ट हो गया है। देन उसके बाद ग्रीन कलर ओपन, देन क्लिक द स्टैम्प टूल्स। उसके बाद हम स्टैम्प टूल्स पे क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट द ट्री, लायन एंड इंडियन ब्लैक बॉक्स एंड देन उसके बाद एंड
thought a balloons one by one. Then select the required size for each and place them in the picture. Then you can change the direction of picture before the placing it. The click the इमेज, मिरर इमेज से हम इमेज भी चेंज कर सकते हैं. देन क्लिक द टूल्स, टेक्स्ट टूल, सिलेक्ट द कलर्स, टेक्स्ट स्टाइल, टाइप द टेक्स्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज बटन एंड रिक्वायर्ड. क्लिक द सेव टूल्स एंड सेव द पिक्चर. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करके हम सेव कर देंगे. तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट हमने न्यू पे जाके हमने स्टैम्प को सिलेक्ट किया हुआ है. ओके, नाउ वी विल क्लिक ऑन द स्टैम्प टूल्स. स्टैम्प टूल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम प्लांट को सिलेक्ट करेंगे, जो ट्रीज़ है उसको हम सिलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हम ट्रीज़ देखेंगे, ट्रीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे. देन ट्री टूल्स पे जाके हम ट्रीज़ को सिलेक्ट करेंगे. सो यहाँ पे देखो ट्रीज़ है, तो अलग अलग ट्रीज़ भी यहाँ पे है, तो उसमें से हम ट्रीज़ वाले टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड ट्रीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. यहाँ पे जो ट्री वाला टूल्स है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की ट्रीज़ है, तो इस यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे. देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्री है, तो हम अलग अलग टाइप के ट्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे. तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के ट्री को सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद उसका साइज़ भी सिलेक्ट कर देंगे. तो देखो हमने अलग अलग ट्री को सिलेक्ट किया है. कहाँ पे हमने सबसे पहले टूल्स पे सिलेक्ट किया है और फिर यहाँ से हमने ट्री वाले टूल्स को सिलेक्ट किया है. ठीक है, तो ट्री वाला टूल्स हो गया है. उसके बाद हमें लेना है लायन का पिक्चर. तो हम पहले क्या करेंगे, एनिमल के इस पे जाएंगे और एनिमल पे जाके हम लायंस के इसको सिलेक्ट करेंगे. तो देखो यहाँ पे लायंस के पिक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे लायंस का पिक्चर हम देखेंगे. देन उसके बाद और हमें रैबिट भी लेना है. तो यहाँ पे हमें रैबिट दिख गया है, तो हम रैबिट को सिलेक्ट कर देंगे. सॉरी, नॉट रैबिट, हम यहाँ पे दूसरा एनिमल लेंगे. ठीक है, हम टेक्स्ट बुक में हमें लायन दिया है और दूसरा पिक्चर दिया है, तो हम यहाँ पे दो कोई भी पिक्चर ले सकते हैं. तो जैसे मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर दूँगी दूसरा एक पिक्चर. देखो मैं एलिफेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम एलिफेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं. साइज़ बढ़ा देंगे हम, ये ज़्यादा साइज़ बड़ा हो जाएगा. हम यहाँ पे देखो मैंने एलिफेंट का सिलेक्ट कर दिया है. देन उसके बाद यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स है, तो अलग अलग एनिमल्स को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे ये लेंगे अभी. तो डिफरेंट एनिमल्स को हम सिलेक्ट करके देख लेंगे पिक्चर्स में. देखो तो यहाँ से हम अलग अलग एनिमल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह हम पिक्चर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. ये देखो हम इसको भी. तो इस तरह हम अलग अलग पिक्चर यहाँ से स्टैम्प वाले टूल से जाके ले सकते हैं. देन उसके बाद अगर हमें कुछ लिखना है तो टेक्स्ट पे जाएंगे. टेक्स्ट पे जाके वाइट कलर का एरिया सिलेक्ट करेंगे. देन उसके बाद ये सिलेक्ट किया है फॉन्ट, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ से हम साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ा छोटा. यहाँ पे जैसे मैं लिखूँगी LION लायन, अदरवाइज़ लिख दूँगी एनिमल्स ANIMALS एनिमल्स. देन उसके बाद ये देखो एनिमल्स आ गए. तो इस तरह हम टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज सम टूल्स बाय यूजिंग द टूल stamp. Now again here giving the again one picture.
So this we will be see in our next period. And I hope you have in your home have a laptop and computer. So in your home have a laptop and computer. So you can do this one by using the टक्स पेंटिंग का यूज़ करके आप घर में भी करके देख सकते हो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.